Hello student, welcome to my channel Only Computer. Let's start CBSE Classic Chapter 1 Computer Languages. And now in this videos some overview of computer languages with the help of this tree diagram. Okay, uh, computer languages. Computer language first is machine languages, normal languages. Second is assembly languages. Um Less easy languages, high level languages, fourth generation languages. This all types is the language of the computer. One by one we can learn all these type in this chapter. Okay, so first we can define program and explain. A program is a set of instruction that tells the computer what to do. Means, for example, program is your school. Okay, in school many teacher is there. Okay, that is a call instructions. And computer is a you, means student. Okay, so in program many teachers is there. Teacher instruct you and tells you what to do. So this is, or program is a set of instructions that tells the computer what to do. Okay, and next is programming, the process of writing specific instructions in a computer languages is called programming. Means, program is your school, but every school has its own process na, has its own process of instruction. Means every school has its own teachers. How to teach has another way for every school. So every program has its own programming languages. Okay, each programming languages has its own specific rule. Every school sees own rules. So each programming languages has its own specific rule. So you learn this program and programming is with the example of your school. So you learn very easily. Okay, and topic is machine languages. Let's start. It is the only language that a computer understand. It is called binary language. Means computer only understand the binary languages, and this languages is a machine language. Okay, what is the binary language? Binary language is 0 or 1, where 0 means off and 1 means on. Okay, machine language is also a low level languages. Okay, advantage. Before advantage we can see some things. First, look at to this diagram. This is your computer, this is your keyboard, and this is your mouse. Computer is your input device. Sorry, computer screen is your output device. That is a monitor. Keyboard and mouse is an input device. Okay. In machine level languages, we can give input in the form of 0 or 1. Okay, computer process this or also give the output in the form of 0 or 1. Okay, computer can't translate this input or output. So this is the machine level languages. Computer only understand this level languages. We can see some binary value of this. First, binary code of 22 is 10110. Binary code of 24 is 11000. Binary code of 46 is 10110. Binary code of add is 0000111. If you want add 22 and 24, then this all the command given to the computer. Okay, this all three command given to output. Input you type with the help of keyboard. Computer process this. After this
give the output in the form of 0 or 1. You understand, na? You give the input in the form of 0 and 1 and also give the output in the 0 and 1. But in today, now, if you use computer, you give the input in the form of A, B, C, D. If computer process in the form of 0 and 1 and also give the output in A, B, C, D. This is the human readable languages. Okay, but computer translate this understand in the form of 0 and 1. Okay, now learn about advantage and disadvantage of machine level languages. Advantage: very high speed, because it is a computer readable languages, so the speed is very high because no translator is between this, so speed is very high. Very low memory utilization, because only one process is done, input process and output same languages is used, so memory is very low utilization. Okay. Disadvantage: tough to learn. It is a computer languages, see human can't learn. It is a very tough to learn. Why? Because it is a binary languages, and every time we learn the binary code and write them. Time consuming, because we learn binary code and then write something, so it is a time consuming. Difficult to write and debug program written to machine languages, so naturally it is difficult to write. And also find out the error is also difficult, and also when error is coming, so solve out is also very difficult. It is extremely machine dependent. It is a fully machine dependent languages. So machine level languages is difficult to understand, difficult to learn. This video we can start assembly languages. Assembly languages is also called as a second generation languages. First generation is your machine language. This language use mnemonic codes or symbols in place of 0 और 1. ओके, जैसा कि आपने देखा कि बाय जो हमने मशीन लैंग्वेजेस किए, मशीन लैंग्वेजेस में बाइनरी कोड यूज होते हैं 0 and 1. ओके, बट असेंबली लैंग्वेजेस में 0 और 1 के प्लेस पे आप मेमोइक कोड, मतलब कि अपने जो इंग्लिश का एब्रीविएशन है, इंग्लिश के वर्ड है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल ऐड, मतलब ऐड जो प्लस का ऑपरेशन होता है, द बाइनरी कोड ऑफ लैंग्वेज, ऐड का बाइनरी कोड क्या होता है 0010. तो उसके जगह पे ये आप कहाँ पे मशीन लैंग्वेजेस में यूज करते हैं. वी कैन यूज़ इन मशीन लैंग्वेजेस. ओके, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करती हूँ. कोई कोई टॉपिक ऐसे होता है जो मैं हिंदी में ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तो इसके लिए लैंग्वेज बीच में नहीं आनी चाहिए. जो मैं इंग्लिश में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ इंग्लिश में, और जो मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदी में ज़्यादा सफिशिएंट है एक्सप्लेन करना, तो मैं हिंदी में कर सकती हूँ, और नहीं तो मैं दोनों को लेके एक साथ चल सकती हूँ. ठीक है, इसलिए इंग्लिश और हिंदी को, लैंग्वेज को लेके कोई इशू आपको नहीं होना चाहिए. ओनली आपको समझ में आना चाहिए. नोट्स हमारा इंग्लिश में ही रहेगा. ओके, वेयर as in assembly language we can directly use add in the place of 0010, means in machine languages we can use binary code in everything, but in assembly language when we add anything, so we can't write add binary code. Simply you write down add, because assembly language is a symbolic code. Okay, as it is difficult to remember code in 0 or 1, which is binary or code, in comparison to assembly code which uses symbols.
means it is very difficult to remember binary code 0010 something. So when we use machine languages, it is difficult to remember this binary code. But when we use assembly languages, it is easy to write down the code, because we can't remember this code, only write down the symbols. Okay, since computer only understand binary language, so the program written in assembly language need to be converted into binary language using assemblers. इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ. मीन्स आप ये ना समझे कि कंप्यूटर को असेंबली लैंग्वेज समझ में आ रहा है. नहीं, कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेजेज ही समझ में आता है. कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1, ये 0 ऑफ 1 ऑन, कंप्यूटर इतना ही समझता है. तो अब क्या हो गया है कि जब हम असेंबली लैंग्वेज में कोई कोड दे रहे हैं ना, तो कंप्यूटर ये जो असेंबलर है, ट्रांसलेटर है, ये इसका यूज करके ये इसका इमिडिएटर का काम कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, ये असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसलेट करता है, और फिर कंप्यूटर उसको बाइनरी लैंग्वेज में ही समझता है. तो पूरा काम किसका है, असेंबलर का है, जो कि ट्रांसलेटर है. ओके, अभी एग्जांपल देखिए. ऐड फॉर एडिशन, मतलब एडिशन को आप ऐड सिंबल में लिख सकते हैं. सब्ट्रैक्शन को आप SUB सब सिंबल्स में लिख सकते हैं. डिवीजन को आप DIV सिंबल्स में लिख सकते हैं. ठीक है, मतलब जैसे कैसा था मशीन लैंग्वेज में, ऐड के लिए भी बाइनरी कोड होते थे, सब्ट्रैक्ट के लिए भी बाइनरी कोड होते थे, डिवीजन के लिए भी बाइनरी कोड होते थे. बट असेंबली लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, आप सिंबल का यूज करके लिख सकते हैं. इट यूजेस अ प्रोग्राम और ट्रांसलेटर कॉल्ड असेंबलर. ये आपको समझ में आया कि ट्रांसलेटर यूज कर रहा है, उसको आप प्रोग्राम भी बोल सकते हैं. कि जब आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसको असेंबलर जो है वो ट्रांसलेट कर रहा है. दैट ट्रांसलेट मेमोइंग टू मशीन कोड. मेमोइक मतलब जो आप इंग्लिश में कुछ भी लिख रहे हैं उसको मशीन कोड में ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को दे देता है. ओके, नाउ कुछ इम्पोर्टेंट ये है, बोला जाए तो कुछ इम्पोर्टेंट आपका टर्मिनोलॉजी है असेंबली लैंग्वेज में, जो जानना आपके लिए ज़रूरी है. ठीक है, तो सबसे पहला है असेंबलर्स. कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम में, इसके लिए. असेंबलर्स क्या है, इज़ अ प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेवलप टू कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन. मीन्स assembler is a program. It work to convert the assembly languages, means English languages to the machine languages. Okay, मतलब assembler is a imitator to assembly languages. आप ऐसे भी बोल सकते हो, यहाँ पे assembler रहेगा. ओके, और ये मशीन लैंग्वेजेस में कोई चीज़ को, कोई भी आप जब सिंबल्स दे रहे हो तो कन्वर्ट कर रहा है. तो असेंबलर क्या होता है, असेंबलर प्रोग्राम होता है एक तरीके. सेटअप इंस्ट्रक्शन, इसमें सेटअप बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं. ओके, नेक्स्ट है सोर्स प्रोग्राम. अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम. मतलब जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेजेस में लिखते हैं, जिसको जो ये असेंबलर है वो कन्वर्ट करता है, वो सोर्स प्रोग्राम होता है. ओके, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट कोड एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम दैट इज कन्वर्टेड इनटू द मशीन को लैंग्वेजेस आर असेंबलर बार असेंबलर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. मीन्स क्या है, सिंपली आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज में एक असेंबलर होता है जो कि
प्रोग्राम का काम करता है, वो असेंबलर क्या करता है, जो असेंबली कोड होता है, असेंबली लैंग्वेजेस के जो कोड होते हैं, मतलब जो असेंबली लैंग्वेजेस में हम लोग कुछ लिखते हैं, उसको जो ये असेंबलर है, ये आपका सॉफ्टवेयर है, समझिए ट्रांसलेटर है, ये इसको ट्रांसलेट करके और किस में, ऑब्जेक्ट कोड में, मतलब मशीन कोड, ऑब्जेक्ट कोड को आप मशीन कोड भी कह सकते हैं, ये मशीन कोड में कंप्यूटर को दे देता है और फिर मशीन उसको बाइनरी कोड में ही, मतलब मशीन कोड में ही आंसर देता है। फिर उसको असेंबलर क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है असेंबली लैंग्वेजेस में, जो कि ह्यूमन रीडेबल होता है। नाउ सम एग्जाम्पल, आपने इसके पहले मशीन लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल देखे थे। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चेक आउट दिस वीडियो, क्योंकि यदि आपने मशीन लैंग्वेज के वीडियो देख लिए तो असेंबली लैंग्वेज आपके लिए मोर इजी हो जाएंगे। ओके, चलिए, बाइनरी कोड ऑफ 22 इज़ दिस, बाइनरी कोड ऑफ 24 इज़ 11000, बाइनरी कोड ऑफ 46 इज़ 10110, बाइनरी कोड ऑफ एडिशन is add, means only difference is here. ओके, मीन्स क्या है कि जब आप मशीन लैंग्वेजेस के को मतलब एग्जाम्पल देखेंगे तो आप एक चीज़ फील करेंगे कि मशीन लैंग्वेजेस में ऐड के भी बाइनरी कोड लिखे जाते हैं। ओके, बट असेंबली लैंग्वेजेस में ऐड को आप सिंबल का यूज करके ऐड लिख सकते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं, एडिशन ऑफ 22 एंड 24, तो ऐड, बट एक चीज़ है, आपको 22 और 24 के बाइनरी कोड ही लिखने पड़ेंगे और जो आपके आंसर आएंगे वो बाइनरी कोड में ही आएंगे। समझ में आया? ये डिफ़िकल्टीज़ है इसमें कि ओनली आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न ये सब के सिंबल्स लिख सकते हो, बट जो ऐड 22 24 है उसके बाइनरी कोड ही लिखने पड़ेंगे। इसलिए ये इतने भी इजी लैंग्वेज नहीं है, इसमें भी आपको बाइनरी कोड याद करने हैं, बट थोड़े से कम याद करने हैं जितने मशीन लैंग्वेजेस में याद करने हैं। ओके, देन देखते हैं इसके एडवांटेज क्या है। इट रिक्वायर्स लेस इंस्ट्रक्शन to get the result as compared to machine languages, means less instruction क्या, इसको थोड़ा कम प्रोग्राम चाहिए क्योंकि ये सिंबल ज़्यादा यूज करते हैं, तो ये थोड़े कम इंस्ट्रक्शन यानी कि कम प्रोग्राम यूज होगा इसमें एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेजेस। असेंबली लैंग्वेजेस आर स्टिल इन यूज़, अभी फ़िलहाल में असेंबली लैंग्वेजेस यूज होते हैं। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कीप ट्रैक ऑफ मेमोरी लोकेशंस, इसको मेमोरी लोकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ फास्टर इन स्पीड एज इट एक्सक्यूशन टाइम इज़ लेस, इसका स्पीड फास्ट है, इसका एक्सक्यूशन टाइम भी बहुत कम है। नाउ डिसएडवांटेज, जिस चीज़ का एडवांटेज होता है उसका डिसएडवांटेज भी होता है, तो चलिए देखते हैं। It takes a lots of time and effort to write a code for the same. Okay, complex and difficult to understand. थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, डिफ़िकल्ट भी होते हैं समझने के लिए। It need more memory of the computer to run the long program. क्योंकि इसमें सिम्बल्स यूज होते हैं इसलिए प्रोग्राम इनका लॉन्ग हो जाता है, इसलिए आपके कंप्यूटर में मेमोरी ज़्यादा चाहिए। Like machine language is also dependent on the machine, क्योंकि इसमें बाइनरी कोड यूज होते हैं, so it is not machine independent, it is a machine dependent. so आप ऐसा बोल सकते हैं कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों में बाइनरी कोड यूज होते हैं और दोनों मशीन डिपेंडेंट ही है। एक टॉपिक असेंबलर का भी होना चाहिए बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट ट्रांसलेटर, और इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको पता चलनी चाहिए, इसलिए मैंने इसका सेपरेट सा वीडियो बनाया है। द कंप्यूटर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेजेस दैट इज़ 0 और 1,
आपने मशीन लैंग्वेजेस में देखा है कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1. In assembly language, mnemonic used for specific instruction like add for addition, sub for subtraction. असेंबली लैंग्वेजेस में आप मेमोइक यूज करते हैं, सिम्बल्स यूज करने लगे, जो एडिशन के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, मूव के लिए MOV मूव, डिवीजन के लिए DIV डिव. सो अ ट्रांसलेटर इज यूज टू ट्रांसलेट द assembly languages into machine languages, which is called as assembler. Means the role of assembler, it is translate this assembly language. This is the assembly languages. These assembly languages to the machine languages. This work is done by the assembler. So assembler is a translator. Assembler is the first interface that makes to able to communicate human with machine. असेंबलर पहला ऐसा इंटरफेस है जो ह्यूमन के लैंग्वेज को मशीन के लैंग्वेजेस से मैच करवाता था. मतलब क्या है, मशीन को ओनली अपनी लैंग्वेज ही समझ में आती थी, अभी भी वही समझ में आती है, बट असेंबलर क्या कर रहा है, जो ह्यूमन का लैंग्वेज है उसको मशीन के लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दे रहा है. चलिए एक डायग्राम से देखते हैं. यहाँ पे सोर्स कोड लिखेंगे. वी कैन राइट सोर्स कोड हियर. व्हाट इज डन, व्हाट टू डू असेंबलर. असेंबलर ट्रांसलेट दिस सोर्स कोड मीन्स असेंबली लैंग्वेजेस टू दी मशीन कोड मीन्स ऑब्जेक्ट कोड 010101 बाइनरी कोड में. मतलब आप यदि कुछ भी यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं अपने लैंग्वेज में, तो असेंबलर उसको पहले ट्रांसलेट करेगा मशीन कोड में एंड देन उसको बाइनरी कोड में ट्रांसलेट करके फिर वो मशीन को देगा, क्योंकि मशीन को ओनली बाइनरी कोड ही समझ में आती है. ओके, सम एग्जाम्पल ऑल्सो गिवन. मशीन लैंग्वेजेस. मशीन लैंग्वेजेस में क्या था कि ऐड 10 and 5. यदि 10 और 5 को ऐड करना है तो इस ऐड के लिए भी आपको बाइनरी कोड यहाँ पे रिटर्न करने पड़ते थे. ओके, बट असेंबली लैंग्वेजेस में क्या हो गया कि इस ऐड के लिए ना आप सिंबल्स ADD ये कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट के लिए SOB. मतलब उस ऐड के लिए आपको बाइनरी कोड रिटर्न नहीं करने पड़ेंगे. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मशीन कोड और मशीन लैंग्वेजेस और असेंबली लैंग्वेजेस. और ये किसके कारण पॉसिबल हुआ है, असेंबल के कारण, क्योंकि वो क्या काम कर रहा है, ट्रांसलेटर का काम कर रहा है. ओके, चलिए कुछ अभी इसके एडवांटेज देखते हैं असेंबलर के. इट अलाउज कॉम्प्लेक्स जॉब टू रन मोर सिंपली. बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉब को ये सिंपली रन कर देता है. इट इज़ मेमोरी एफिशिएंट, सो इट रिक्वायर्ड लेस मेमोरी. It is faster as its execution time is less. It required less instruction as compared to machine language to get the result. Okay. Next है disadvantage. It takes a lot of time and effort to write the code for the same. सही बात है, आपको आप बाइनरी कोड के प्लेस पे सिम्बल्स यूज कर रहे हो तो it takes lot of time. It is very complex and difficult to अंडरस्टैंड. थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं क्योंकि इसमें बाइनरी कोड और मेमोरिक कोड दोनों ऐड होते हैं, इसके लिए. इट इज़ नीड मोर साइज और मेमोरी ऑफ कंप्यूटर टू रन द लॉन्ग प्रोग्राम रिटर्न इन असेंबली लैंग्वेजेस. यदि कोई लॉन्ग प्रोग्राम आप लिख रहे हो तो आपको आपके कंप्यूटर में मोर मेमोरी की रिक्वायरमेंट हो जाती है. Start. My next video is a translator program. Before translator program, one translator is a assembler. Assembler translate assembly language to the machine languages. But these two translator, first is interpreter and second is compiler. Interpreter and compiler is also a translator, but it translate higher level languages to the
machine languages. High level languages program need to be translated into machine languages by using the translator program. Okay, two types of translator, which interpreter and compiler. With the use of these two translator, we translate higher level languages to the machine languages. Last video, we can see two types of translator program. One is interpreter and second is compiler. So let's learn about what is interpreter. An interpreter translate line by line, execute the instructions and then repeat the procedure for the remaining instruction. मीन्स इंटरप्रेटर क्या है, यदि आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा तो एक साथ सारे प्रोग्राम को चेकआउट नहीं करेगा, वो लाइन बाय लाइन आपके प्रोग्राम को चेकआउट करेगा। और यदि एक लाइन में कोई एरर है तो एरर आपको डिस्प्ले करके देगा, फिर आप उसको सॉल्व करोगे, फिर अगेन से वो सेकेंड लाइन को रिपीट करेगा और फिर उसको चेकआउट करेगा और फिर आपको एरर ला के देगा। ओके, इंटरप्रेटर प्रोग्राम आर प्रीफर्ड फॉर बिगनर एंड आर स्लो इन एक्सक्यूशन। मीन्स व्हेन यू आर बिगनर, आप यदि स्टार्टिंग कर रहे हैं कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना या कुछ भी करने का, तो आप इंटरप्रेटर का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्लो है। तो बिगनर के लिए ठीक है क्योंकि ये लाइन बाय लाइन चेकआउट करता है, तो इसको एक्सक्यूट होने में थोड़ा टाइम जाता है। ओके, चलिए देखते हैं कैसे ये काम करता है। फर्स्ट, दिस इज़ योर हाई लेवल लैंग्वेज जो आप लोग लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ABCD anythings. Interpreter line by line interprets the high level languages to the object code. इंटरप्रेटर उसको लाइन बाय लाइन चेकआउट करता है और देन उसको मशीन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर देता है और फिर कंप्यूटर उसको बाइनरी कोड में अपने पास ले लेता है। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ द इंटरप्रेटर। सो in short form, you see interpreter is your translator. When you type anything in high level languages, interpreter interpreted that high level languages to the machine code. Learn about compiler. Last video we are learn about the interpreter. You know there are the two type of translator program. First is interpreter, second is compiler. So compiler is the translator program used to convert a high level languages program to the machine languages. The function of the compiler and the interpreter are same. Interpreter is also the translator. It also convert high level languages from machine languages, but only difference is there. Compiler translate the whole program. Okay, interpreter compile line by line sorry, interpreter compile line by line program, but compiler translate whole program at once. That is, it generate the object code for the program along with the list of errors. Means कंपाइलर जब एक साथ आपको पूरे प्रोग्राम का एरर दे देगा, आपको लाइन बाय लाइन नहीं देता है। एक्सक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज़ वेरी फास्ट एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर। नेचुरली है, इंटरप्रेटर फाइंड आउट लाइन बाय लाइन एरर, बट कंपाइलर फाइंड आउट होल प्रोग्राम एरर इन वन टाइम. So compiler is a very fast as compared to interpreter. This is your last topic for chapter 1 computer language. Topic is 4th generation languages. 4th generation languages are closer to human language than any other higher level languages. Main features of high level languages: highly user friendly,
and dependent of any operating languages, very high speed of execution, designed to reduce the overall time it takes to develop software and cost of software development. So fourth generation languages is very close to human languages.